Good morning, student. My name is Siddhi Khanna. I'm from IMT College of Law, Greater Noida, assistant professor in this college. Today, I'm going to discuss with the topic name promotion and incorporation of company. It is a important topic in company law. Uh, we will discuss who is the promoter and what is the incorporation of company. Okay, so shall we start? Uh, this is the introduction uh, of the incorporation of the company कि इनकम्पनी एंड कॉर्पोरेशन किस तरह से होता है. The whole process of the formation of a company we divided into 4 stage. 4 स्टेज में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डिवाइड किया गया है कि कैसे कैसे पहला प्रोसीजर क्या होगा. फर्स्ट स्टेप इज द प्रमोशन. प्रमोशन वी विल डिस्कस वन बाय वन बट टुडे अभी आप बस इतना देखिए कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप्स हैं. पहला हमारा है प्रमोशन ऑफ द कंपनी. देन प्रमोशन के बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम. रजिस्ट्रेशन के बाद फ्लोटेशन आता है. देन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट हो जाता है. फोर्थ स्टेप है. Establishing a company is not a one-day task. Before a firm may take its ultimate form, it must complete many process. Promoters play an important role right from the start of the process. So here it is mentioned that कि जो कंपनी का प्रमोशन होता है वो एक इजी टास्क नहीं है. ये टास्क कैसे स्टार्ट होता है, कौन स्टार्ट करता है? प्रमोटर स्टार्ट करता है. प्रमोटर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस. The process of forming a corporation is exclusive and involves several steps. तो ये प्रोसेस में क्या है कि प्रमोटर स्टार्ट करता है और इसमें कई सारे एक्सटेंसिव प्रोसेस इन्वॉल्व हैं. वो प्रोसेस में हम वन बाय वन देखेंगे. द प्रमोशन स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन प्रोसेस इज द फर्स्ट स्टेप. तो कंपनी के स्टार्टिंग का पहला स्टेप क्या होता है? दैट इज प्रमोशन. An individual or a group of people known as promoter come up with the concept of starting a business at these stage. तो ये बता रहा है कि प्रमोटर्स कौन होता है. प्रमोटर्स एक ग्रुप्स ऑफ पीपल है जो एक कंपनी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं. बट उनका मोटिव क्या होता है? मोटिव टू डू अ बिजनेस. Various process must be completed to incorporate a firm. The promoters carry out this function and establish the firm. So, whole and sole responsibility to complete the incorporation of the company lies on the promoters. So, promoter are the whole and sole person who decided that how to start a company and all the legal formality related to the incorporation of the company carried by the promoters. So the promoter carry out this function and establish the firm. और promoters इस सारे firms के इन सारे legal formalities को पूरी कर देते हैं. उसके बाद कंपनी का incorporation हो जाता है. The Indian Companies Act 2030 define the term of the first टाइम. तो कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है कि कौन प्रमोटर्स होते हैं, उनका इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसीजर होगा, कि हम लोग वन बाय वन देखते हैं. So the definition of promoter of the company stated in the section 2 clause 69 of the Companies Act 2013. So promoter की जो definition है वो it was mentioned in the Companies Act 2013 and 2 clause 69 of the Companies Act. So promoter कौन व्यक्ति होगा ये बताया गया. There are 3 points. First, who has been named as such in a prospectus or identified the company in the annual return referred to in section 92. So, first line आपकी mention करता है कि who is the promoter. The promoter is the person whose name is mentioned in the prospectus of the company. So, you have to understand what is the prospectus of the company. और इस prospectus में जिस person का नाम mention होता है that one is a promoter of the company. So prospectus is nothing but a document. एक तरह का document है which was released by the
released by the company at the time of issuing of share. तो जब आप जब कंपनी को शेयर इशू करना होता है तो उससे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और उस प्रोस्पेक्टस पे जिस व्यक्ति का नाम होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द प्रमोटर ऑफ द कंपनी. एंड सेकेंड लाइन में आपका मेंशन किया गया है और करके, इज आइडेंटिफाई बाय द कंपनी इन एनुअल रिटर्न. सो फर्स्ट वन, की प्रमोटर कौन होगा? प्रमोटर इज द वन whose name is mentioned in the prospectus of the company, and the promoter is also a person whose name is mentioned in the annual return of the company. और annual return क्या होता है? Annual return is a document which is uh, आपको रिलीज करना होता है ईयरली, कि कंपनी की क्या एसेट्स, लायबिलिटी, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, सारी बातें आपकी एनुअल रिटर्न में फाइल की जाती है. सो एनुअल रिटर्न में जिस पर्सन का नाम होगा वो प्रमोटर होगा, और जिसका प्रोस्पेक्टस में नेम होगा वो प्रमोटर होगा. बिफोर कंपनीज एक्ट 2013, जो 1956 का कंपनीज एक्ट था, उसमें प्रमोटर की जो डेफिनेशन बताई गई थी, इट इज वेरी कन्फाइंड. बट इन द कंपनीज एक्ट 2013, प्रमोटर्स की जो डेफिनेशन है काफी वास्ट कर दी गई है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. सेकेंड पॉइंट, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर और अदरवाइज. सो नेक्स्ट वन क्या है आपका? हम किसे प्रमोटर कह सकते हैं? जिसका कंट्रोल होगा ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी. तो कंपनी के जो भी इंटरनल मैनेजमेंट होगा, उसमें जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, जिसका कंट्रोल होगा उस मैनेजमेंट में, वो पर्सन भी प्रमोटर्स माना जाता है. तो दैट कंट्रोल मे बी डायरेक्टली हो सकता है और इट मे बी इनडायरेक्टली. ओके, whether as shares holder, director or otherwise. So the promoter may be shares holder or a director or any other person, whoever has control the affair of the company or internal management of the company. So the definition of promoter is going to वास्ट, मतलब बहुत वेरी वास्ट हो चुकी है, जिसमें आपका सिर्फ वो पर्सन नहीं जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम है, इसके अलावा वो व्यक्ति भी जिसका कंपनी के कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में जिसका भी कंट्रोल है, हम उसे भी प्रमोटर्स मानते हैं, जो शेयर होल्डर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी हो सकता है, और कोई एनी अदर पर्सन भी हो सकता है. नेक्स्ट है आपका, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट. नेक्स्ट लाइन आपकी कहती है कि जो पर्सन एडवाइस देता है, डायरेक्शन दे सकता है या इंस्ट्रक्शन दे सकता है, किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो उस पर्सन को, जो पर्सन एडवाइस कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम टू एक्ट, मतलब उनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाध्य है, तो वो पर्सन भी प्रमोटर माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है, दैट इज फंक्शन ऑफ प्रमोटर्स. अब प्रमोटर्स के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं? अ प्रमोटर प्लेज वेरियस फंक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, from convincing the ideas to taking all the necessary steps to convert the idea into reality. प्रमोटर का मेन काम होता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना, और इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स होते हैं वो प्रमोटर ही परफॉर्म करता है. तो ये फंक्शंस वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या काम किए जा सकते हैं. सो द मेन फंक्शन ऑफ द प्रमोटर इज टू comprehend the idea of formation of the company. तो प्रमोटर वो व्यक्ति होगा जिसके माइंड में सबसे पहले ये आइडिया आता है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, कि उसे एक कंपनी स्टैब्लिश करनी है फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग अ बिजनेस, और वो बिजनेस कोई भी बिजनेस हो सकता है. सो जिस पर्सन के माइंड में सबसे पहले ये आइडिया आता है कि मुझे ये बिजनेस करना है और उसके लिए मुझे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो वो पर्सन भी हम प्रमोटर कहते हैं. और ये पर्सन की जो डेफिनेशन बताई गई है प्रमोटर की, ये आपके 1956 के कंपनीज एक्ट में बताई गई थी. और इस डेफिनेशन के साथ साथ जो हम लोगों ने 2+69 में डेफिनेशन पढ़ी है प्रमोटर्स की, वो भी इंक्लूड की जाती है. द प्रोमोटर लुक्स इनटू द viability and feasibility of the idea, that whether the formation of the company will be profitable and practicable or not.
तो सेकंड इज कि प्रमोटर क्या देखता है, प्रमोटर देखता है कि जो कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहता है, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वो जो करना चाहता है विल बी प्रॉफिटेबल, क्या वो प्रॉफिटेबल होगा, क्या वो प्रैक्टिकेबल है या नहीं, इस हिसाब से वो सारी चीजें डिसाइड करता है। नेक्स्ट वन इज आफ्टर द आइडिया हैज बीन convinced, the promoter collect and organize the resources available to convert the idea into reality. So जो आइडिया उसने स्टार्ट किया है कि वो बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता है, उस बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो भी चीजें कलेक्ट करनी है, रिसोर्सेस कलेक्ट करने हैं, उन रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करना है और अपने आइडिया को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसे जो भी चीजें करनी है वो सारी चीजें प्रमोटर करता है, यही उसका फंक्शन है। नेक्स्ट है द प्रमोटर डिसाइडेड द नेम ऑफ द कंपनी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कंपनी का नाम डिसाइड करेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हम आगे स्टेप्स देखेंगे जिसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबमिट किए जाते हैं। एट दैट टाइम कंपनी का नाम नाम भी डिसाइड होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी का नाम जो होता है उसी नाम से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। इवन तो आप बाद में अपने कंपनी के नाम को चेंज कर सकते हैं, बट एट द फर्स्ट इंस्टांस आपको एक नाम सजेस्ट करना होता है। तो कौन सजेस्ट करेगा, दैट इज प्रमोटर, जो डिसाइड करते हैं कि कंपनी का नाम क्या होगा। एंड ऑल्सो सेटल द content regarding the article of association and memorandum of association of the company. Okay, the promoter is one who decide whether the head office of the company will be situated. So the next step is promoter decide करेगा कि कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड होगा, तो कहीं भी सिचुएटेड हो सकता है। सो द इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के कुछ 5 क्लॉजेस मेंशन होते हैं, जिसमें एक क्लॉज होता है स्टेट क्लॉज, जहां पे मेंशन करना होता है कि कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। द प्रमोटर ऑल्सो नॉमिनेट पीपल और एसोसिएशन फॉर वाइटल पोस्ट। इसके बाद कंपनी का जो प्रमोटर्स होता है कुछ पीपल्स को नॉमिनेट भी करता है। द प्रमोटर्स में अपॉइंट द बैंक ऑडिटर एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी का डायरेक्टर्स और कंपनी के बैंकर्स और ऑडिटर को अपॉइंट करने का भी राइट रखता है। Next, the promoter also prepare all the necessary documents which are required to incorporate a company. Obvious सी बात है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ एसोसिएशन, सॉरी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट किए जाते हैं। तो उन सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, दैट इज प्रमोटर। नेक्स्ट, द प्रमोटर मस्ट अंडरगो अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन and after analyzing all the concept related to the idea discovered, the promoter must think about the cost, profitability, production, demand of the product, supply of such product in the market, etc. तो और ये सारे इन्वेस्टिगेशन करने का भी राइट की पावर किसके पास है, प्रमोटर्स के पास है। Next, the promoter has to enter into preliminary contract with a third party on behalf of the contract to collect all the resources necessary to form a company. The promoter may contract for the purchase of material, land, machinery, and also recruit staff for the initial functioning of the company. So, the promoter का क्या काम है, that is preliminary contract में entered होना। preliminary contract means before the incorporation of contract, प्रमोटर्स ने जो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट की है वो कहे जाते हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। इसका पर्पस क्या है, जैसे कंपनी को लैंड परचेस करनी है जहां पे कंपनी की बिल्डिंग स्टैब्लिश होगी, सो उस लैंड के परचेस और सेल से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे वो प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। सो बाद में ऑब्वियस सी बात है कंपनी बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करती है, और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड बाय द प्रमोटर एंड इट इज रिफंड बाय, और क्या आप कह सकते हैं रिम्बर्स्ड बाय द प्रमोटर्स टू द कंपनी। कंपनी से वो रिम्बर्स कर लेंगे कि मैंने आपके इनकॉर्पोरेशन में इतने एक्सपेंसेस किए हैं, सो आप इन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को वापस करिए। ये हमारा आगे का स्टेप्स है, देख लेते हैं। Next, the promoter decided who can be the signatory to the both of memorandum and article of the company. Obvious सी बात है मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो भी पर्सन सिग्नेटरी होगा उस पर्सन को डिसाइड करना, ढूंढना कि कौन उस पर्सन वो कौन पर्सन होगा जो एमओए और एओ में सिग्नेचर करेगा। The signatories are those who become the director of the company. The promoter get written consent from such signatory that they will act as a director. ठीक है।
The promoter makes all the publicity for the company by way of advertisement and making strategies during the period of promotion of the company. यानी किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट वगैरह जो भी करना होगा वो भी प्रमोटर करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी प्रोसीजरल एक्सपेक्ट, कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अ मेजर रिफॉर्म फ्रॉम बिजनेसमैन इन इंडिया। मेजर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2015। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू बिजनेस विल रिक्वायर ओनली वन फॉर्म टू बी फिल्ड अगेंस्ट अर्लियर 5 फॉर्म। द न्यू फॉर्म इज INC 29 कहा जाता है जिस फॉर्म का नाम है, and it replaced earlier tedious process of filing out several forms of incorporating a new company. Next is the application for availability of name of the company. As per section 4 clause 4, a person may make an application to registrar for the reservation of a name set out in the application, the name of the proposed company or the name to which the company proposed to change its name. तो सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हम एक नेम सजेशन की एप्लीकेशन डालते हैं जो हमारी मेंशन की गई है 4 क्लॉज 4 में। ये एप्लीकेशन भेजा जाता है, उसमें नाम मेंशन होता है कि कंपनी का क्या नाम होगा। एक बार अप्रूवल हो जाता है फिर आप मेमोरेंडम और आर्टिकल में उस नाम को लिख सकते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच डिफाइन द स्कोप ऑफ द कंपनी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट किए जाते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल उसमें देख लीजिए क्या क्या चीजें मेंशन होती है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 स्टेट दैन मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। 5 क्लॉज होते हैं जिसमें एक पहला क्लॉज होता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्लॉज नहीं, सॉरी, नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम मेंशन होता है कि कंपनी कैसी कंपनी है, मे बी पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इज 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है जिसमें लिखा होता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड होगा। नेक्स्ट वन इज ना ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज वन जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा। ऑब्जेक्ट में बी एनीथिंग बट इट मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है कंपनी का। Next one is the liability of the members of the company. Liability may be a two type, limited liability or unlimited liability. लिमिटेड लाइबिलिटी इज लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसमें कंपनी की मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिट कर दी गई है इन केस ऑफ लॉस की पर्टिकुलर शेयर होल्डर से कितने पैसे की डिमांड की जा सकती है। बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी the shareholder may be can't be limit to the certain amount, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो उसमें लिखा होता है कंपनी के आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है इन केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल। और नेक्स्ट आपका आता है कैपिटल क्लॉज जिसमें लिखा होता है कि कंपनी के ऑथराइज कैपिटल कितनी है, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल क्लॉज। नेक्स्ट इज द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का नाम होता है, सब्सक्राइबर कौन होता है, सब्सक्राइबर इज द पर्सन हु इन्वेस्ट इन द कंपनी, जिसने कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइबर टू द कंपनी, जिसमें सब्सक्राइबर का नाम भी मेंशन होता है। इफ अ 1 पर्सन कंपनी, अगर सिर्फ एक पर्सन की कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी इज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो इनकॉर्पोरेट किया था 2013 के कंपनीज एक्ट में। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज नथिंग बट आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो भी इंटरनल मैनेजमेंट होता है, कंपनी कैसे काम करेगी इंटरनली, उसका किस तरह से रेगुलेशन किया जाएगा, ये सारी चीजें आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है आपका, इट्स अ बाई लॉज और रूल रेगुलेशन दैट गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। Thus, the memorandum lays down the scope and power of the company, and the article govern the way in which the object of the companies are to be carried out. सो नेक्स्ट आपका आता है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक एप्लीकेशन दी जाती है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जो रूल 12 में लिखा गया है कि कैसे आपको एप्लीकेशन देनी है। नेक्स्ट इज मेमोरेंडम और आर्टिकल।
ऑब्वियसली बात है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन जो कंपनी का एक अच्छा डॉक्यूमेंट माना जाता है, सबसे पहले वही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट किया जाता है। सो मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने के बाद वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ता है। एक नेक्स्ट आता है आपका डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रोफेशनल। इसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो आपको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है। कुछ प्रोफेशनल का डिक्लेरेशन होता है, वो प्रोफेशनल कौन होते हैं वो देख लेते हैं। सेक्शन 7 में आपका मेंशन किया गया है, रिक्वायर फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय द एडवोकेट और अ चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस who is engaged in the formation of the company and by a person named in the article as a director, manager, secretary of the company, that all the requirement of the act has been complied with। ये डिक्लेरेशन सिर्फ इसलिए होता है कि जिसमें एक कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट ये डिक्लेयर करता है कि कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, वो सारी फुलफिल हो चुकी है। नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, दैट इज एफिडेविट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। एक एफिडेविट सबमिट किया जाएगा बाय द सब्सक्राइबर टू द कंपनी। This affidavits from each of the subscribers to the memorandum and from person named as the first director, if any, in the article that he is not convicted of any offense in connection with the promotion, formation, and management of the company, or that he has not been found guilty of any fraud or misfeasance or any breach of duty to any company under this act or any previous company law during the proceeding 5 year, and that all the document filed with the registrar of the company contain information that is correct and complete and true to the best of his knowledge and belief। यही सारी बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका है फर्निशिंग वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। एक वेरिफिकेशन भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है कि जो भी आपने रजिस्टर ऑफिस एस्टैब्लिश किया है उस रजिस्टर्ड ऑफिस में आप कम्युनिकेशन के लिए रेडी है। दैट इज अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज, जिसमें कंपनी शैल on and from the 15th day of its incorporation and at all time thereafter have a registered office capable of receiving and acknowledging all communication and notice as may be addressed to it। The company can furnish to the registrar verification of the registered office within the 13 days of incorporation। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर। इसमें आपके क्या लिखा होता है, कुछ रूल 16 है कंपनीज के जिसमें मेंशन किया गया है कि फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग सर नेम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी सब्सक्राइबर की इंफॉर्मेशन दी जानी है कि उनका नाम क्या होगा, उनकी फैमिली का क्या नाम है, वो कहाँ रहते हैं और नेशनैलिटी उनकी क्या है, और ऑल दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्सक्राइबर शुड बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है, with a view to fulfilling the various formality that are required for the incorporation of the company, the promoters may appoint an attorney empowering him to carry out the requirement stipulated by the रजिस्ट्रार। नेक्स्ट आपको जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कंपनी का जो रजिस्ट्रार होता है वो इशू कर देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये आप नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय द रजिस्ट्रार। सो सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेटेड दैट द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन filed under subsection 1 of the section 7 shall register all document and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that the proposed company is incorporated under this act from the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation. Such subscriber to the memorandum will become the member of the company। सो इट इज अ इजी प्रोसीजर जहां पे रजिस्ट्रार क्या करता है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर ने सबमिट किए हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता है, देखता है कि सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है नहीं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है, दैट इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो इसके बाद आता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो इशू कर दिया जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबमिट किया गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो इशू किया गया रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के द्वारा, शैल बी अ कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस मीन्स कि इस पे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जा सकती है। दैट इज आफ्टर द इशूइंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट company is established
and the existence of the establishment of the company can't be questioned. So all the requirement of the companies have been complied with in respect of the registration. The association is a company authorized to be registered, and the association has been duly registered. Meaning the term conclusive evidence means that no inquiry shall be allowed to be made regarding the correctness or incorrectness of the particular content in the certificate of incorporation. So these are the प्रोविजन जिसमें कंपनी का जो प्रमोटर्स होता है वो कौन होता है हमने पढ़ लिया, और प्रमोटर्स की क्या फंक्शंस होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर करता है। इन प्रिपरेशन के बाद वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के। देन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सारे डॉक्यूमेंट की इन्वेस्टिगेशन करती है, चेक करती है कि ऑल द लीगल फॉर्मेलिटी शुड बी कंप्लाइड। और जब वो सारे फॉर्मेलिटीज चेक करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करती है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। और आफ्टर द इशूइंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, द कंपनी इज रजिस्टर्ड, and the incorporation certificate is a conclusive evidence that the existence of the company, कि कंपनी के ऊपर कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। दिस इज द कंक्लूजन। सो थैंक यू।